Good morning, everyone. Hello, am I audible? Good morning, sir. Audible. Okay, thanks. So any questions from what we discussed last time? So I have a question, but it is not from the last session that we did. So what is PLC? Go ahead. PLC is product life cycle. Sir, हम presentation करने के time पे for every product the company offers we'll have to do that, or how are we supposed to do it? Not for every product. At least you should try and cover at least a couple of products which are key products for the company, if not all. Okay, sir. Okay. Anything else? No, sir. ठीक है. तो फिर मैं करेक्टली आज आपका रेज्यूमे सेशन है, करेक्ट? मुझे शेड्यूल मुझे काम नहीं है, आई थिंक. Correct, Siddharth? That's Yes, the session that you. correct, sir, correct. Okay, so we'll start with resume. So let's just put a context to this, how we will run these sessions. So between today and tomorrow, I will share the perspective in terms of what are the important things that you need to take into consideration for while preparing resume. And then आप जो individual आपके specific doubts and questions and queries है आप पूछ सकते हैं, because they are a lot of time there would be scenarios where you have a unique situation. For example, let's assume there's a gap in your experience, there's a gap in your education. How do we present that? Stuff like this. तो आप individually मुझसे questions पूछ सकते हैं जो आपके resume specific issues हैं या queries हैं या जो challenges आपने आज तक face करे. So that's what we'll do between today and tomorrow. And then you will get another week. Next week आपको मिल जाएगा, and then you can go back and जो हम आज और कल में discuss करेंगे, you can use that information and you have to change and probably modify or enhance your resume and bring it back in the next weekend so that I can look at your updated resume, and then अगर कोई और specific मुझे input या enhancement कराना है वो मैं आपको share कर सकूं, and then we will close those resume. समझ आ गया? ये 2 parts में होगा exercise. ठीक है. So ठीक है सर. हाँ जी. So what's the purpose of this resume? Why do we use this? Let's put a context to this before we start specifically क्या क्या चीजें आती हैं इसमें. So why do we need this? इसका use क्या है? What's the objective? हाँ जी. To get a better job, get better opportunity. और इसका need क्या है? Let me ask this. I think वो शायद सही question होगा. इसका need क्या? What is the need of this? What is the purpose of this resume? Need, purpose. Why does it exist? Of course, end result जो सिद्धार्थ ने बोला, to get a better job or to get a job for that matter, because if somebody who's a fresher who is not working तो उसके लिए वो objective होगा. But ठीक है, उसके अलावा specific और क्या need है? Consolidated information. ठीक है, आप अपने इंटरव्यूअर या अपने पोटेंशियल
एम्प्लॉयर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, ठीक है, टू शेयर इंफॉर्मेशन। और कैंडिडेट की क्या क्वालिटी है, क्या उसको नॉलेज है, वो मिस ऑर्गेनाइजेशन को पता चलना चाहिए। दैट इज द पर्पस। सो व्हेन यू से इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन में सारा आ जाता है, आपका एजुकेशन सारा। बैकग्राउंड, आपका टेक्निकल, आपका एक्सपीरियंस, आपका आई थिंक all this will come into this category of information, and we'll come to that यस to this यस। कि क्या क्या होता है, but I'm saying broadly when I think Rahul said information sharing, राइट उसमें राइट। मेरी एजुकेशन एक्सपीरियंस, मैंने क्या सर्टिफिकेशंस करे हैं, मेरा पास एक्सपीरियंस कहाँ रहा है, आई थिंक ब्रॉडली वहां सब कुछ कवर हो जाता है उस कैटेगरी के अंदर। और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? think from the way I look at these resume, for me the important piece is you are sharing this resume will be most of the time will be somebody will be reading this when you are not in person। सबसे ज्यादा यही यूज होगा इसका, मतलब सबसे ज्यादा इसी सिचुएशन में रिज्यूमे सबसे ज्यादा एडवांटेज। फॉर एग्जांपल इफ सपोज यू हैव सेंड योर रिज्यूमे टू सम कंसल्टेंट एंड देन कंसल्टेंट ने आगे दी हायरिंग मैनेजर और हायरिंग कंपनी को फॉरवर्ड किया है, सो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, हायरिंग मैनेजर डिसाइड ओके डू दे वांट टू हैव अ कॉल विद यू, डू दे वांट टू हैव एन इंटरव्यू विद यू और नॉट। वो जो डिसीजन वो लेता है वो आपका रिज्यूमे देख के लेता है। यू विद मी टिल दिस पॉइंट? राइट सर राइट। क्या आप वहां पे इन पर्सन उसके पास होंगे जब वो आपका रिज्यूमे देख के वो डिसीजन ले रहा होगा कि आपको उसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं बुलाना? नो सर नो। इट रिप्रेजेंट्स ये समझ आया? यही सबसे बड़ा फर्स्ट टारगेट होता है रिज्यूमे का, कि वो रिज्यूमे जब आपने किसी को भेजा वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला ले। बिकॉज अगर रिज्यूमे भेजा और रिज्यूमे देख के आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाता ही नहीं है तो आप प्रोसेस में आगे जा ही नहीं पाओगे। हाँ या ना? राइट हाँ सर। सर राइट। ठीक है। So what does this mean now? I will give you a minute just to think through ये मैंने जो येलो में हाईलाइट किया है। Does this mean any difference to you? Have you understood the part that what I'm trying to explain? इसका मतलब आपको समझ आया? Just give it a thought, especially this part जो मैं रेड में किया है। Just ask yourself, have you looked it from this perspective in the past? If yes, what was your thought? If no, then what has changed for you now? So think through this, and then let me know your thoughts on this. जी, any thoughts on this?
guys? Any no thoughts on this? The portion which is in red. सर इसमें ऐसे है कि रेज्यूम ये ऐसे एक डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन मीन्स क्या होगा, कैसे होगा, ओके, और इसमें क्या क्वालिटीज होगी। सो आप खुद उसको पता, लेकिन वो रेज्यूम से उसको पता चल जाता है। करेक्ट। सो व्हाट डज दिस मीन? ये जो पीस है, सॉरी लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो सिद्धार्थ, ये जो पार्ट है आप सामने नहीं है, इससे क्या इंपॉर्टेंस आते हैं? इट मीन्स योर resume should be simple करेक्ट सर, for someone to understand even if you're not there. राइट सर। मतलब उसमें ऐसी लैंग्वेज या ऐसे टर्म्स यूज करना जिसको समझाने में आपकी जरूरत पड़े, then your resume probably might not get the attraction that it should get, correct? Because let's assume अगर मैंने आपको अपना resume भेजा, मैंने उसमें ऐसी लैंग्वेज लिखा है या ऐसा वर्ड्स लिखा है या ऐसा कॉन्टेक्स्ट लिखा है जो आपको मेरे बिना समझ में नहीं आएगा, तो मैं रिज्यूमे भेजा तो आप कह रहे तो समझ ही नहीं आया, तो आप शायद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल भी ना करो। करेक्ट सर, करेक्ट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इंश्योर कि आपको ये क्लियर समझ आ जाए कि जो हम लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना कि रेज्यूम इज सेलिंग डॉक्यूमेंट, तुम खुद को सेल कर रहे हो। और मुश्किल होता है, मैं आपको बताता हूं। सो फॉर एग्जांपल एक सेलर है, लेट्स अज्यूम एक सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट है, वो आपके पास आके प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपको जब वो सेल कर रहा होता है तो वो साथ में होता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है बहुत सारी चीजें। राइट राइट राइट। बट यहाँ पे जो सेलिंग का पॉइंट है, सेलिंग का पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी आप उसके सामने हो ही नहीं, इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन कैप्चर, वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ हैज गॉन टू हिम और हर, एंड ही और शी before meeting you or even before deciding whether he or she wants to meet you, be it through telephonic or in person or video conference, वो डिसीजन वो ले लेते हैं वहां पे। वो डिसीजन के टाइम पे आवर रिज्यूमे इज व्हाट शुड बी हेल्पफुल टू ब्रिंग द डिसीजन एज यस, तभी इंटरव्यू कॉल आएगा ना। राइट। सर ये वाला थोड़ा वापस बोल दीजिएगा। सर राहुल, जैसे तूने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और तू अपने बॉस को वो एक समरी भेज रहा है, बट यू नो कि जब तू वो बॉस को समरी दिखा रहा होगा, यू विल बी विद योर बॉस, तो अगर तेरे बॉस को कुछ समझ नहीं आएगा, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। दैट इज सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, अपने बॉस को समरी भेज रहे हो, बट जब वो आपका बॉस आपकी समरी पढ़ रहा होगा तो वो आप वहां पे नहीं होंगे। रेज्यूमे फर्स्ट सिनेरियो कि सेकंड सिनेरियो? सेकंड। उससे क्या मतलब होता है कि आपको जो लैंग्वेज, टर्म, जो वर्ड, जो कॉन्टेक्स्ट उसमें लिखने हैं, वो और ज्यादा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए इवन व्हेन यू आर नॉट इन पर्सन। यस सर, यही चीज बोलना चाह रहा हूँ। सो प्लीज, ये बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखे रिज्यूमे में, व्हेन यू गो एंड रिक्रूट पीपल, दे यूज टर्मिनोलॉजी, jargons which they believe is very common for everyone to understand, but there's a potential that somebody, especially if you're changing the industry, guys, for example आप में से कोई एक पर्टिकुलर एक्स इंडस्ट्री में है, वो ऐसे टर्मिनोलॉजीज, ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम यूज करेगा जो अदर पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड, करेक्ट? एंड यू जस्ट पुट एन एब्रिविएशन टू दैट, thinking somebody will understand. And if you're changing the industry, the person from another industry, how he or she will understand what this term means. And that's where definitely when I see a lot of these terms, a lot of these context words or abbreviation in a resume, then generally वो resume से मेरा interest खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे तो क्या बोलना चाह रहे हैं। And of course, in a reality, nobody will spend time. If you're a recruiter, you have authority to select who you want to meet. And if you have 50-40 resumes being given prior HR and you want to meet to 1 to 2 people, again, of course, in reality, I will not try and waste time ऐसे ही abbreviation का मतलब क्या है, मुझे वो समझ नहीं आया, I will drop the resume and move to the next resume. हाँ ये ना? हाँ सर। If you are also on the recruiting side, you will also follow the same pattern, correct? If a resume which is good, but you are not able to understand a lot of pieces and hence you are not able to assess whether it's a good or bad,
बहुत लाइकली आप उस रिज्यूमे को स्किप करके आगे चले जाएंगे. Sorry, somebody is not on mute, please. राहुल, ये आपके साइड से आई थिंक. Now can you go on mute? Rahul. Okay. So now, so what we need to keep in mind that our resume should be very simple and easy for someone to understand. Sorry, ये मेरा चीज कोई बात नहीं. So please ensure कि ये चीज आप हमेशा underlying principle याद रखें. Resume should be simple and easy to understand. Okay. Now let's come to the important part. What all should be included in a resume. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे ओपन करो और आप मुझे ये करके बताते जाओ आपके रिज्यूमे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है या आपके हिसाब से क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिज्यूमे में आनी चाहिए. ठीक है, चलिए. हाँ जी, बोलिए. पर्सनल डिटेल्स. चलिए नेक्स्ट. Education and experience detail. एजुकेशन एंड Past एक्सपीरियंस. past experience. एक्सपीरियंस. चलिए और Summary. So I don't know if that will come up. कोई बात नहीं, वी आर डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सो दैट्स ओके. समरी. ओके. You should try and look at your resume and say कि ये चीजें मैंने अपने resume में डाल के रखी है, which means you believe वो होना चाहिए. Correct? You should throw all this, get all these in on the screen so that we discuss each of these. Achievement. Sir, extracurricular activity. Sorry, I can't hear you. Extracurricular activities. Or Narayana, please go on mute. Yeah. Achievements, sir. Any achievement if we have done in past. ठीक है. और Ongoing courses. ongoing courses. Okay. Okay. और Objective, sorry. like the first thing, objective. Objectives. Okay. और Sir, key skills. sorry. Key skills. Key skills. Yeah. Okay. Okay. What else? Please open your resumes and check in that. It's important you bring everything which is in your resume here. Hanji, what else? Earnings. Sorry? Rahul, Earnings. क्या बोला? Earnings. It's earning. Is that what you said? Yes, sir. Earning means salary. Yes, sir. Salary का amount. Okay. ठीक है. और what else? कंपेयर करिए लिस्ट को अपने रिज्यूमे के साथ. Languages we know.
languages. चलिए और Like projects handled in your previous jobs. वो इसी में नहीं आ जाएगा एक्सपीरियंस में. Okay. Computer skills. चलिए और Activities and interests. और हाँ जी. What else? Skill set. Sorry. Skill set. Skill set. Okay. ठीक है. और बोलिए. हाँ जी. सर सैलरी तो नहीं लिखते ना हम लोग. हेलो. What else? Yeah. सर हम लोग सैलरी तो मेंशन नहीं करते रेज्यूमे में. ईशान अभी ये मत बोलो ये नहीं करते. आपके रिज्यूमे जो है वो सब यहाँ पे आ गया है तो ठीक है. हम अभी वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे तब फिर डिस्कस. अभी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है. लेट्स लिस्ट डाउन एवरीथिंग. ओके. तो जरूरी नहीं है कि आपके रिज्यूमे में जो हो दूसरों के रिज्यूमे में भी वो हो. विल कम टू दैट. आपके रिज्यूमे जो है वो सब यहाँ कैप्चर हो गया है. कुछ बाकी है वो चेक कर लो बस. Sir, references. ओके. और गाइस मुझे लग रहा है आप लोग अपने रिज्यूमे स्क्रीन पे खोल के चेक कर रहे हैं. बिकॉज इफ दैट वुड हैव बीन द केस आप लोग ये बहुत लिस्ट बहुत बड़ी होती है और जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं. इफ यू ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट कि आपको रिज्यूमे में बोले थे लास्ट क्लास में रिज्यूमे कैरी करना, अगर आप नहीं कर रहे हो एंड यू ट्राइंग टू डू दैट, आई लीव इट टू यू. सर करियर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स यार बोले थे किसी ने आई थिंक. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे. ठीक है. और मैं भी मोस्टली तो मेरे रेज्यूमे से भी तो सब कुछ इसमें आ गया. इसके अलावा अभी कुछ है नहीं. ठीक है. सो सिद्धार्थ इज डन. बाकी लोग Sir, done. ठीक है. और Sir, done. ठीक है. ईशान, राधा, All points covered. डिक्लेरेशन. लास्ट. सॉरी डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन. ओके अंडरस्टूड. या That's all. डिक्लेरेशन. चलिए ठीक है. So now let's discuss each of these and see what's the perspective and क्यों डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए and try and understand. This is, see, resume is, there's no rule book, right? It's subjective. It also varies from industry to industry. It also varies at what level you are. It varies also what role you are working, what nature of your job
बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन ये होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन यू से पर्सनल डिटेल्स, तो आप लोग के हिसाब से पर्सनल डिटेल में क्या क्या आना चाहिए? व्हेन यू से पर्सनल डिटेल, लेट्स स्टार्ट लिस्टिंग डाउन, क्या क्या चीजें इसमें? योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, और एड्रेस, ईमेल आईडी, ओके, एड्रेस, फोन नंबर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए यार, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ईमेल, चलो डिटेल में लिखते हैं, एड्रेस, ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। एनीथिंग एल्स? भाई अपने रिज्यूमे में देखो, फिर बताओ यहाँ पे कुछ और है जो पर्सनल डिटेल्स में आपने कैप्चर किया हुआ है विच इज नॉट मेंशन इन दिस कैटेगरी। अगर आप नहीं बोलोगे तो एनालिसिस में आपका वो डिटेल बाहर हो जाएगा, देन यू विल नॉट हैव अ क्लैरिटी कि वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए गाइस। So what इसमें about कुछ और photograph? होता है। सॉरी, Photograph, photo. फोटो, ओके, नेशनैलिटी, फोटो, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, सर पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर, करेक्ट, और सर इसमें एक फादर्स जस्ट, नेम, मदर्स नेम, हाँ और एक अभी मेरे रिज्यूम में नहीं है लेकिन मोस्टली कोई लिंक्डइन के प्रोफाइल का लिंक भी वहाँ पे मेंशन करता है। ठीक है, ठीक है। सो लिंक्डइन का, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट नीचे अलग से हमने लिखा हुआ था, तो इंटरेस्ट को वहां देखेंगे। लिंक्डइन हो गया, और फादर्स नेम, मदर्स नेम, यस, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड लैंग्वेज नॉन। लैंग्वेज नोन भी अलग से हमने नीचे लिखा है। रोल नंबर 27 देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक। और और हॉबीज आ सकती है हॉबीज अलग से है, अलग पॉइंट से नंबर सर। 28, रोल नंबर 28। और बस, चलिए। सो पर्सनल डिटेल रखनी चाहिए, हाँ, आई थिंक आंसर इज यस। नाउ जो डेफिनेटली रखनी चाहिए पहले उसको देखते हैं। आई थिंक नेम, ऑफ कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ठीक है। आई थिंक ये चीजें तो डेफिनेटली रखनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नेशनैलिटी है। सो नेशनैलिटी जनरली वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पे आप डालो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सही जनरली वहां ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है जहां पे आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हो, और यू नो दिस एप्लीकेशन और द कैंडिडेट दैट आर लुकिंग एट इज अक्रॉस द ग्लोब, तो वहां जनरली रिलेवेंट हो जाती है। बट लेट्स अज्यूम अगर आप आप गुड़गांव में रहते हो एंड यू अप्लाइंग इन गुड़गांव ओनली, एंड नेशनैलिटी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, सो प्रोबेबली तो आप वो पिक एंड चूज कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस ठीक है, आप डाल सकते हो, लेकिन इतना कोई नहीं है। बाकी पासपोर्ट नंबर अगेन नॉट रिलेवेंट अनलेस आपको आप बोला गया है, बिकॉज अगर कोई ट्रैवल ओरिएंटेड जॉब नहीं है या कोई नहीं है ऐसा, तो प्रॉबेबली अवॉइड करो पासपोर्ट नंबर एट द बिगनिंग। बाद में अगर जरूरत होगी तो आप दे सकते हैं, बट अगर उस एप्लीकेशन में पहले से ही लिखा हुआ तो ऑफकोर्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगेन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव आई थिंक वो माना जाता है कि वो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई, फॉर समवन टू आइडेंटिफाई, तो जनरली आप योर नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जनरली इस तरीके से लिखते हो, सो ठीक है। So yeah, LinkedIn, of course, it's again a new modern concept of putting your profiles. ठीक है, तो हाँ, अगर आपका है और आप को लगता है आपको डालने से हेल्प होगा तो आप डाल सकते हैं। So that's about personalities. Any comments, query in this before I move to the next part? सर ये फोटो रिलेटेड जैसे फोटो डालते हैं, अभी मैंने कई जगह पे डाला था, वहां पे उन्होंने फोटो निकाल के मुझे सीवी सेंड करने के लिए बोला था। अरे सॉरी, ये फोटो जो है ये रेड नहीं होना चाहिए था, आई मिस दिस।
देखो अब ये जो फोटो का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है एंड ऑल्सो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. सो जनरली इनटू फाइनेंशियल वर्ल्ड जनरली फोटो का यूज और रेफरेंस नहीं होता है. But let's assume if you're applying in an industry जहाँ पे your looks probably also is important part, ठीक है, and how do you so those pieces are also, for example, if you're applying for, let's assume, hotel industry जहाँ पे and if your role is some front end role, you're applying for let's assume something where these parameters are also, कैसे वहाँ पे generally photo matter करता है. Otherwise, from a financial modeling or at least this program perspective, I think photo is not something which is mandatory. My initial recommendation is कि उसको नहीं रखोगे तो better है. ठीक है. Anything else in personal details? Any question, query? No. Education, of course, I think is simple, self-explanatory. Yes, आपको education रखना चाहिए, सारी information यहाँ पे capture करना चाहिए डिटेल में. ठीक है. इसमें आप एजुकेशन में अभी एजुकेशन में जस्ट ये था माइंड में था कि एजुकेशन जो होता है हम लोग लाइक एसएससी डालते हैं, एचएससी डालते हैं, ओके, देन आपका जो ग्रेजुएशन है वो डालते हैं. लेकिन अभी कोई मैंने एक जगह पे अटेंड किया था, उन्होंने क्या बोला था कि आपका सिर्फ लेटेस्ट आप एजुकेशन डालो. तो क्या करेक्ट है सर? देख, इसमें करेक्ट है कि नहीं है, कोई गूगल और रूल बुक नहीं है. यू हैव टू इंडिविजुअली थिंक एंड डिसाइड. सो लेट्स अज्यूम मेरे रेज्यूमे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और मेरे को स्पेस कम पड़ रहा है और मैंने बहुत सारे एजुकेशन डिग्रीज करी हुई है, तो ऑफ कोर्स आई विल डिसाइड, ओके यार, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा हुआ है सो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो, और आपके पास बहुत सारी डिग्रीज है, तो आप स्पेस बताने के लिए आप कहते हो ठीक है मैं उन डिग्रीज में वन ऑफ द डिग्री जो नीचे है, जो फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तभी किया होगा जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा, एंड यू से क्या है इसको स्किप कर देते, तो वो कॉल आपको लेना. बट इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, यहाँ जितने भी लोग हैं जनरली आर इन द ब्रैकेट ऑफ 5 to 10 years के एक्सपीरियंस ब्रैकेट में, तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी को भी ऐसा कि स्पेस की प्रॉब्लम आएगी और आपके पास कोई भी ऐसी 50 डिग्रीज है जो आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है. सो फॉर यू आई थिंक माय थॉट प्रोसेस इज कि ट्राई एंड कीप दैट अनलेस यू बिलीव कि स्किप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इनके कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, आपको बहुत केयरफुली कॉल लेने होंगे. नहीं, और वो डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है सर, बहुत मींस कंसल्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. वो मींस में जस्ट मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया सर, ऐसे हुआ है. नहीं, मेरे हिसाब से रखना चाहिए, मेरे हिसाब से रखना चाहिए. ठीक है. क्योंकि एक पर्सपेक्टिव समझ आता है आपका बैकग्राउंड क्या है. स्पेशली लेट्स अज्यूम अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया है और आप बैचलर्स डिग्री आपने इंजीनियरिंग साइड से किया है, तो वो पुटिंग दैट कॉन्टेक्स्ट वो समझ आता है ना सामने वाले बंदे कि आपका बैकग्राउंड क्या है. केस टू, लेट्स अज्यूम आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हैं, देन आपने लेट्स अज्यूम कोई और डिप्लोमा किया है. सो हाउ विल समबडी कम टू नो आपका जो नॉलेज बेस है, आपका जो एजुकेशन बेस है वो क्या है. राइट सर, एग्री. ठीक है. आई थिंक एजुकेशन इज क्लियर. एक्सपीरियंस आई थिंक ये भी क्लियर है. आपको अपने जितना भी एक्सपीरियंस है पास वो रखना चाहिए. उसमें क्लियरली आपकी जॉब कहाँ थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे क्या डेजिग्नेशन था आपका, कब से कब तक आपने काम किया और आपकी वहां पे क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सब आपको उसमें रखना चाहिए. एनी डाउट इन फर्स्ट 3 पॉइंट? एंड देन समरी. सो जनरली समरी हाँ रखना चाहिए. और समरी वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है रेज्यूमे में. सो सपोज इफ इफ यू आर अ फ्रेशर, आपके फ्रेशर के रिज्यूमे में 1 पेज भी बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट, उसका कुछ होता ही नहीं लिखने के लिए. स्पेशली जो अगर बीकॉम ग्रेड है और आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और अभी आप मार्केट में अपना रिज्यूमे फ्लोट करते हैं, तो कुछ होता ही नहीं लिखने के लिए.
आप 10th 12th लिखोगे, ग्रेजुएशन लिखोगे, एक दो हॉबी लिखते, कुछ होता ही नहीं आपके पास लिखने के, तो वहां पे आप समरी क्या बनाओगे? आपका रिज्यूमे इटसेल्फ इज अ समरी, बट वीजा विल लेट somebody who is in a 10-year experience bracket, ठीक है, and he or she has worked across the industries, different segments में काम किया है, different portfolios हैंडल करे हैं, different client segments हैंडल करे हैं, तो मतलब काफी कुछ है। तो resume starts getting into somewhere in 2 pages। तो अब किसी रीडर के लिए मुझे एक पैरा में स्नैपशॉट देना है कि व्हाट्स माय एंटायर समरी ऑफ माय स्किल सेट एंड माय बैकग्राउंड, तो वहां पे रिज्यूमे ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और जनरली रिज्यूमे को अगर आप रख रहे हैं तो जनरली शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे, सबसे टॉप पे आना चाहिए। somebody who is looking at this, तो समरी में एग्जीक्यूटिव समरी जैसे होता है किसी भी रिपोर्ट का, ये वो है, उसको समरी में समझ आ जाए कि हाँ उसको आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है या आगे जाना चाहिए या उसको आगे जाने की जरूरत नहीं। तो summary generally is at the top. Any questions or doubt in this? So how does summary differ from objectives? So difference होता है, ऑब्जेक्टिव समरी जो होती है, समरी आपकी प्रेजेंट टू पास्ट होती है राहुल। समरी में आप बात कर रहे हो कि मैं आज क्या हूं और पास्ट से आज तक में कैसे क्या मेरा चला। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करो, तो कि मेरा प्लान क्या है, मैं कहाँ मूव करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। So summary is about past to present, objective is present to future. Okay, sir, got it. Thank you. For example, अगर तू मुझे बताता सर मैंने मेरी समरी है कि मैंने MBA किया है and I have a total work experience of 10 years and I've worked in banking and insurance sector, ये तेरी समरी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव सर now I want to work into let's assume equity research, ये ऑब्जेक्टिव है, you're talking about the future plan. Clear है राहुल? Yes, sir. Clear. नेक्स्ट, ये मेरे को समझ नहीं आया, एक्स्ट्रा करिकुलर ये क्या है, जिसने भी लिखवाया था, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन एक्स्ट्रा करिकुलर? आप कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हो? स्कूल कॉलेजेस में जो होती है या कुछ और बात कर रहे हो? इफ समबडी कैन हेल्प मी टू द कॉन्टेक्स्ट टू दिस। सर स्कूल कॉलेजेस में जो होता है, तो गिव मी एन एग्जांपल, आपने अपने रिज्यूमे में क्या एक्स्ट्रा करिकुलर रखे? गिव मी एन एग्जांपल। सर जो हमने कॉलेज में जो भी फंक्शंस प्रोग्राम्स में अटेंड किया है जिसमें हमें प्राइज मिला जो भी है, दैट पर्टिकुलर। गिव मी एन एग्जांपल, गिव मी स्पेसिफिक एग्जांपल। हाँ सर, आई वाज इन एड बैट शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें हमें प्राइज मिला था, सो मैंने वो ऐड किया है। आई एम नॉट श्योर वेदर उसका मैं क्या करूं, मतलब व्हाट इज द यूज, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन मैंने कॉलेज में उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, जस्ट लाइक दैट। उससे क्या इन्फॉर्मेशन आप रिक्रूटर को बताना चाह रहे हैं, क्या इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बताओ ना मुझे। व्हाई यू सो मैंने डाली हुई थी, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड। देखो, अगर आपके पास बहुत सारी है, where you trying to give a sense कि you in your college or in your plan, if you can please go on mute in case you're not speaking, there's a lot of Yes, noise, sure, background noise on your side. So in case you have lot of activities into different domain and you're trying to, और लेट्स कोई एक एक्टिविटी है जिसमें आप बार बार रेकरिंग आपने स्पेशलाइजेशन किया है, आप बहुत एक्टिवली एंगेज रहते थे, तो आप ला सकते हो। बट लेट्स अगर आपके पास कोई एक वन ऑफ इवेंट है कि अच्छा हमने यहाँ पे ये किया था, हमें प्राइज मिल गया, एंड दैट इज वन ऑफ इवेंट, वो चीज आपके लिए ओवर एंड आउट होगी, अभी भी आप उसमें कोई स्किल नहीं है आपके अंदर, दैट इज नॉट समथिंग यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसका कोई यूज नहीं है यार। ठीक है, रिक्रूटर इससे ये जानना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे इफ आई हर्ड करेक्टली ही सेड कोई एडमेट शो ऐसा कुछ उसने बोला, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू assume it's something would be drama where you probably acted in some role। अगर एक वन ऑफ इवेंट किया एंड यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से इक्विटी रिसर्च, तो वहां पे उसका क्या यूज है? ठीक है, बट वीजा अगर आपने रेगुलरली एक्टिंग में आप करते आए हो, आपने उसके बाद भी किया, पहले भी करते आए हो, यू आर स्टिल इनटू एक्टिंग, एंड देन ठीक है, देन यू कैन ट्राई एंड ब्रिंग कि मेरी पर्सनालिटी में ये चीजें भी अभी हैं, this is my overall package, it's not that I'm only looking at this, I do a lot of other things as well. Is that clear? Yes sir.
Yes, sir. Achievement. Yeah, again, achievement is what? Which type of achievement are we referring to? Give me a few examples. तो अचीवमेंट यानी जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने मेरे रेज्यूमे में डाला है सर कि मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ कुछ सिस्टम चेंज हुए थे। ओके, तो सिस्टम चेंज करते वक्त मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी एक प्रोजेक्ट की कि उसमें ये सप्लायर मास्टर है, इसका जो भी कंपाइलेशन वो सब करना है वो तुम्हें करना है। और उसमें मैंने कंपाइलेशन भी किया था, उसके साथ मेरे कुछ उसमें ऐसे कुछ ओपन पीओस थे जो मेरे लाइबिलिटी थी, जो मैंने वो देख के उसमें से कुछ 2 करोड़ की लाइबिलिटी, अनवांटेड लाइबिलिटी मैंने कम करवा दी। दैट इज अचीवमेंट। मैंने वो वैसे उस हिसाब से डाला है। So यानी ये अचीवमेंट आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट है, टू कीप इट सिंपल, हाँ, करेक्ट? राइट राइट। तो वो आप ये जो एक्सपीरियंस लिखोगे उसी में एक हेडिंग करके आप अचीवमेंट बना सकते हो। तो यस, फिर आनी चाहिए। अगर ये प्रोफेशनल अचीवमेंट से तो आनी चाहिए। ओके ओके। और वैसे ही कोई एग्जांपल कोई देना चाहता है अदर देन प्रोफेशनल अचीवमेंट? सो आई एग्रीड इज यस फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट। एनीथिंग, एनी अदर एग्जांपल which you wanted to see clarification from me, or is everybody okay with this? Any personal achievement जिसको डाउट हो या डाला हो बट नॉट क्लियर, डालना चाहिए डालना चाहिए, अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। द अचीवमेंट्स में हम लोग वो तो डाल सकते हैं ना, जो हम लास्ट जॉब में हैं वहां हमने अपने लिए अवार्ड्स एंड ऑल जो भी गेन किया हो वहां पे। प्रोफेशनली है ना? यस सर। प्रोफेशनल अचीवमेंट तो मैंने बोल दिया ना, आप डाल सकते हैं, डालनी चाहिए। ओके। बट अदर देन प्रोफेशनल किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो विल नॉट ट्राई एंड स्पेंड टाइम इन दिस। देन ऑनगोइंग कोर्सेज, ये ऑनगोइंग कोर्सेज आपके एजुकेशन में ही आ जाएंगे ना? इसी का पार्ट है ना ये। एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ, जो आप कंप्लीट कर चुके हो और आप जो कर रहे हो, दोनों एजुकेशन में आ जाए। ओके सर। ठीक है, की स्किल्स। सो व्हेन यू से स्किल्स, गिव मी एन एग्जांपल गाइस। क्या स्किल्स आप लोग डाले हुए हैं? गिव मी एन एग्जांपल। जैसे आई थिंक राहुल ने बोला कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपके पास, राहुल अगेन, व्हिच कंप्यूटर स्किल्स आर यू रेफरिंग टू? गिव मी एन एग्जांपल। Access SQL like that. हाँ ठीक है, if you have those kind of an skills, कोई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई आपको इस तरह के हैं, तो आप डाल सकते हैं। और वो आपके जॉब के लिए रिलेवेंट है तो डेफिनेटली डालने चाहिए। ठीक है, और कोई टाइप ऑफ स्किल्स जो आपने डाले हो या आपको डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। या आपके कोई स्किल और आप डाउट में हो गया, ये मैं डालूं नहीं डालूं, वो भी पूछ सकते हैं। ये आपको इंडिविजुअल इंटरेक्शन करना है। अब आपको ये सेकंड पार्ट है, ये वो पार्ट में है कि आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि सर ये चीज मैंने डाली है, मैं इज राइट रॉन्ग, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो सब पूछना चाहिए। इफ यू कीप क्वाइट देन ये सब आपको पॉइंट्स पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सर मेरा जो टॉपिक है ना, की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस है। ठीक है, क्या डाला उसके मैंने अंदर? उसमें लिखा हुआ है, मैंने प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क एंड इंश्योरिंग दे गेट डन फर्स्ट एंड गेट डन प्रॉपरली। फर्स्ट मैंने ये लिखा हुआ है। सेकंड है प्रोफिशिएंट विद एमएस वर्ड, जी सूट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो आई थिंक सेकंड वाला, अगर आपने लिखा हुआ है कि आई थिंक
सो सेकंड वाला पॉइंट दोबारा पढ़ो. Proficient with MS Word, G Suite, and other forms of work-related technologies. ये अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में क्या आता है वो स्पेसिफिक लिखो ना यार. ऐसे ठीक है. बोलना कि आई एम प्रोफिशिएंट और हैव कॉम्पिटेंसी इन ऑल वर्क रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी ना ईशान. ओके. तो थर्ड पॉइंट भी आपको है जो मेरा. एक मिनट रुको. आपको जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटेंस है उन टेक्नोलॉजी के नाम लिखो वहां पे. ठीक है. ठीक है सर. नेक्स्ट पॉइंट थर्ड. Excellent knowledge of data collection and data analysis. इफ यू बिलीव आप डिफेंड कर पाओगे इंटरव्यू में तो रखो. मैं अब आपसे पूछता हूँ, गिव मी एन एग्जांपल. आप अगर मैं इंटरव्यूअर में आपसे पूछूंगा क्या ऐसा एक्सीलेंट डेटा रिसर्च कर लिया तुमने, गिव मी एन एग्जांपल. ऐसा क्या रिसर्च कर लिया तुमने? सर हम लोगों का एनालिसिस का ही वर्क है ना वहाँ पे, जहाँ हम मैं हम करेंटली लोग का नहीं, तेरा तेरा पूछ रहा हूँ मैं. आई एम आस्किंग नॉट हम, आई एम आस्किंग यू. ओके तुमने ओके सर. ऐसा मेरा क्या करा जो है है आज तक लाइफ में जिसकी वजह से तुमने वहां पे एक्सीलेंट डेटा रिसर्च लिख दिया? एक्सीलेंट डेटा रिसर्च नहीं, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस. हाँ कलेक्शन, तो पहले कलेक्शन बताओ. गिव मी एन एग्जांपल which basis which you have concluded this that you have excellent knowledge of data collection. सर बेसिकली हम लोगों का क्या, सॉरी मेरा क्या काम होता है वहाँ पे कि हम मेरा क्या जितने काम है वो नहीं पूछ रहा हूँ ईशान. आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इज योर रोल. वो रोल तू अपने एक्सपीरियंस में समझा चुका होगा, करेक्ट? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, हाँ या ना? यस. ये तूने अलग से सेक्शन डाला हुआ है. अगर तू बोल रहा सेम चीज में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो देन यू आर ट्राइंग टू डू दिस एज ए डुप्लीकेट. बट यहाँ पे तू कुछ और बोलना चाहता है. अब तेरे पास उसका आंसर नहीं है इसलिए तू ये बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा रोल ये है, हमारा जॉब ये है. तूने स्पेसिफिकली क्या, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये, तूने ऐसा क्या किया है जॉब में या पर्सनली विच हैज मेड यू बिलीव दैट यू हैव एन एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ डेटा कलेक्शन? स्पेसिफिक आंसर दो. ईशान एक्सीलेंट नॉलेज तो नहीं है, लिखूंगा फिर नॉलेज ही लिख सकता हूँ मैं. चलो एक्सीलेंट वर्ड तो हट गया फिर, क्योंकि Yes. आपको डिफिकल्ट हो रहा है डिफेंड करना. हम्म. अगर नॉलेज ही है तो नॉलेज तो सबको होती है. अगर आप कह रहे हो कि कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा आता है या ये मैं औरों से अच्छा करता हूँ, तभी कॉम्पिटेंसी आती है ना मेरी. अगर आप सबके जैसा ही कर रहे हो तो कॉम्पिटेंसी क्या है? सबको आता है, आपको भी आता है. सर मेरी प्रेजेंटेशन जब भी होती है ना, मैं सबसे पहले उसमें रखता हूँ और दूसरों की तो आती भी नहीं है ऑफिस में. आप, एंड अरे तो यही तो बोल रहा हूँ. जब जब मैंने आपको पूछा ऐसा आप क्या करते हो, वहां पे बोलना चाहिए ना. मैं आपको ये थोड़ा डाउट कर रहा हूँ आप गलत लिख रहे हो. मैं बोल रहा हूँ एज ए रिक्रूटर वो एग्जाम्पल दो ना. जब मैंने आपसे पूछा तो फिर उसमें बोल क्यों नहीं रहे हो कि मैं अपनी हाँ, प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता हूँ टाइम पे, मैं जो ऑन प्रेजेंटेशन देता हूँ उसमें मैं ये चीजें कवर करता हूँ. वो स्पेसिफिक जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक कैसे पता लगेगा? अगर आपके पास उसको डिफेंड करने के लिए पॉइंट है तो ठीक है, ये हम इंटरव्यू डिस्कशन में जो सेशंस होंगे उसमें बात करेंगे. बट यू अंडरस्टूड करेक्ट? अगर आप ये चीज लिख रहे हो तो आपके पास इसको डिफेंड करने का आंसर होना चाहिए. तो रिज्यूम में कुछ भी लिखो, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डिफेंड दैट. ठीक है. उसके बेसिस पर डिसाइड करो आपको एक्सीलेंट लिखना है या इस पॉइंट को ड्रॉप करना है. आई लीव इट टू यू. और मैं ये टेस्ट करूंगा व्हेन वी रीच टू द इंटरव्यू सेशंस. ओके सर. नेक्स्ट पॉइंट. सर 3 पॉइंट्स ही. अच्छा आप फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट में तूने क्या लिखा? Prioritizing important tasks and ensuring they get done first and get done properly. ठीक है, तो इसके लिए भी रेडी रहना. आपको कोई यही पूछेगा, ये तो सभी करते हैं, ऐसा तुम में क्या यूनिक है, ऐसा क्या तुमने एक्स्ट्रा किया है जिसकी वजह से तुमने कॉम्पिटेंसी बना दी? Sir, it's all about अभी deadlines. आंसर नहीं Deadlines. देना है, अभी आंसर नहीं देना है. बी प्रिपेयर्ड. जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन होंगे उसमें पूछा जाएगा. इफ यू बिलीव कि हाँ तुम्हारे पास आंसर्स हैं then you can retain this in a resume. if you believe आप फंस जाओगे वहां पे तो थिंक अगेन कि ये रखना है कि नहीं रखना. ठीक है शायद. Okay, sir. कोई और स्किल्स पे किसी को डाउट क्वेरी हो तो पूछिए. Sir,
Around. I don't know if I can put this. Electronics repair. ये हॉबी है कि ये प्रोफेशनल है? ये हॉबी है, बट हाँ हॉबी है, बेसिकली हॉबी है. हाँ, तो हॉबी और स्किल्स में डिफरेंट है ना. ये तो हॉबी को तो नीचे अलग से बात करते हैं अभी. हाँ, लेट्स Okay, अज्यूम अगर आप ये प्रोफेशनली करते हो, या प्रोफेशनली छोड़ो, अगर आपने ये फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव कोई कोर्स या डिप्लोमा किया है और आपकी नेक्स्ट जॉब में यूज होने वाला है, तो ऑफ कोर्स आपको इसको स्किल्स में लेके आना चाहिए. आपका स्किल बन गया ना फिर वो. yes sir. फॉर एग्जांपल एज ए हॉबी, इफ आई प्ले क्रिकेट, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, वो मेरा स्किल नहीं है ना यार, वो हॉबी है ना. स्किल और हॉबी में डिफरेंस होता है. Got it. Thank you. स्किल क्या होता है? स्किल को आप ले जाके मार्केट में उसके अगेंस्ट पैसा चार्ज करते हो. हॉबी आप जो अपने लिए कर रहे हो उसके लिए चार्जिंग नहीं करने, पैसा नहीं बिल करोगे किसी को. तो वो डिफरेंस ध्यान रखो आप. An organization will not pay you for a hobby. Organization will pay you for your skill. और वो स्किल जो उसके काम का, अगर आप स्किल में ऐसी कोई चीज लिख रहे हैं जो उसके काम की नहीं, तो उसके लिए वो पे नहीं करेगा. चलिए नेक्स्ट, अर्निंग्स. सो I know there are a lot of there's a lot of different school of thought, and so my thought is कि ऐसा before I share my thought, so I think Rahul तूने बताया था, and if anybody, so just put your context, don't worry about जो लोग नो बोल रहे हैं, बट एक मुझे लॉजिक बता कि अगर तू रखता है, तेरा लॉजिक क्या, थॉट प्रोसेस क्या, क्यों रखता है इसको अपने रिज्यूमे में. What are you trying to bring in by putting this? Or what message or information you're trying to convey to the recruiter? So this point is not particularly with respect to me. फिर भी बोल सकता हूँ. नहीं, तो अगर तेरा व्यू रख, तू you keep it, you don't keep it, और your व्यू इसके रखना चाहिए. अगर तेरा व्यू नहीं रखना चाहिए तो रहने दे. हाँ सर. ओके. तो you believe कि नहीं रखना चाहिए. Yes sir. तो फिर मेरे इसमें तो रखना चाहिए. कोई ऐसा है जो जिसका व्यू है कि अर्निंग या सैलरी रखना चाहिए रिज्यूमे में? नो सर. तो ठीक है, हटाओ, फिर इस पर डिस्कशन क्यों करनी है. लैंग्वेजेस. हाँ, लैंग्वेजेस लेट्स अज्यूम अभी आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, you're applying in Indian markets, वहां पे क्या लैंग्वेजेस नोन लिखोगे? हिंदी और इंग्लिश कंसिडर टू बी कॉमन, करेक्ट? इट्स अ मिनिमम, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज रिक्वायरमेंट, इट्स टेकन एज ग्रांटेड कि आपको इतना आता ही होगा. बट ऑफ कोर्स लेट्स इफ यू नो अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, वो डेफिनेटली आप लिख सकते हो. बट अगर हिंदी और इंग्लिश और आपके रिज्यूमे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी है, देखो ये जो कॉल होती है ना, आपको लेनी पड़ती है, बिकॉज अगर आपके रिज्यूमे में कुछ नहीं है और आपको पेज भरना ही भरना है, तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें फालतू को डाली जाती है, इससे पेज भरा हुआ दिखे. बट if your resume has a lot of information to bring in, then you will try and not waste space by adding all these useless informations. ठीक है. So my view on this is, if it's Hindi and English, for example, you know Punjabi, you know other local languages, उसका कोई use नहीं है यार. In my view, especially if you're applying to a more of an international or an MNC. Let's assume if you're applying to some local company, वहाँ पे local languages का importance है, then of course you can bring this also on the resume. मीन्स लैंग्वेज नहीं रखनी है नॉर्मल. नहीं, कौन सी लैंग्वेज है वो डिसाइड करेगा. तो तुझे कौन सी लैंग्वेज आती है वो मुझसे आप पूछ, लोग मैं बता दूं. नॉर्मली इंग्लिश एंड जैसे अभी महाराष्ट्र में मराठी, बस तीन, और उसके सिवा कुछ नहीं. सो वही तो कॉल आपको लेने को बोल रहा हूँ. जैसे अगर आपको लगता है आपके ऑफिस जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे मराठी या इस तरह की कोई भी लोकल लैंग्वेज से आने से आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो आप रख लो. बट इफ यू ट्राइंग टू अप्लाई इन अ कंपनी व्हिच इज एमएनसी, वेयर both the vocal and the
your written language would be English, then by telling कि तुझे मराठी आती नहीं आती उसका कोई एडवांटेज है कि नहीं है, वो असेसमेंट तुझे लेना सिद्धार्थ. ठीक है. Any other doubt in language? Sir, or anybody can hear me? I don't know if it is working. I can hear you. Go ahead. No, okay. So I thought the network had failed or something. Sorry. So, in case no question on languages, so we'll move to the next point, hobbies. So, hobbies again, I think I've covered this in earlier points. For example, saying listening music, watching movies, playing cricket. If अगर ऐसे common hobbies हैं and you believe इससे कोई खास impact या आपकी personality में नहीं पड़ रहा है, but let's assume अगर आप बहुत ज़्यादा seriously उन activities को करते हैं, you believe that would be something important to bring in, और आपके resume में space है तो आप ये लिख सकते हैं. But let's assume again, ये जो hobbies वाला part है ना, ये पहला तो तब आएगा जब आपके resume में space बचता है. अगर आप ऑलरेडी 5 to 6 years वर्क एक्सपीरियंस पे हो और आपका रिज्यूम ऑलरेडी 2 पेज पहुंच चुका है, then adding this on the third page is of no use, especially say watching movies, listening to this. तो I think थोड़ा सा इतना relevance कम हो जाता है. But let's say you're a very very aggressive reader, बहुत आप read करते हैं into different kind of books, and let's say you're applying into a role जहाँ पे reading is one of the important piece, and because of the reading the view and the different thought process that you bring on board is also important. तो हम वहाँ पे उस hobbies को रख सकते हैं. ठीक है. Skill set, I think skill set, I'm not sure when you say skill set, each skill set दो तरीके से बन सकते हैं. या तो आप experience से बनाते हो या आप education से बनाते हो. ये दोनों यहाँ cover नहीं हो जाएंगे क्या? Give me an example of a skill set यहाँ पे जो आप अलग से लिखना चाहते हो जो आपके education experience में cover नहीं हो रहे होंगे. और ये यहाँ पे भी तो cover हो ही गया ना आपका. I think ये गलती से 2 बार लिख दिया तो उसको हटा देते हैं. Then references my view इसकी initially avoid करो. ठीक है. At the initial process, बाद में अगर कंपनी जब when you get to that stage और उस इंटरव्यू प्रोसेस में आप आगे पहुंचते हो तब कंपनी वैसे भी आपसे मांगेगी, तब आप रेफरेंसेस को ऐड करिए. Any question on references? No, sir. No, sir. Declaration last. ये क्या है? So if anybody can put a context, what does this mean? डाला हुआ है. What does this mean? Sir, I write. I. Hello, sir. Go ahead.
सर मैंने एक लाइन लिखी हुई है डिक्लेरेशन में, कैन आई बोलो। I hereby declare that above mentioned data are true, completed and correct to the best of knowledge and belief. ओके, सो डज दिस मीन अगर ये लाइन नहीं होती तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आप इनकरेक्ट दे सकते हो? Yes sir, इसका कोई यूज नहीं है, I know that. फिर भी डाल रखा है। इसका Hello. मतलब क्या? ईशान, कैन यू हियर मी? Yes sir. सो माय क्वेश्चन इज, अगर ये डिक्लेरेशन दो रेज्यूमे है, ठीक है, पहला रेज्यूमे जिसमें ये डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है, और दूसरा रेज्यूमे जिसमें डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट रेज्यूमे में कैंडिडेट ने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी और बाद में एचआर ने पकड़ लिया, तो क्या वो ये जस्टिफिकेशन दे सकता है कि यार मैंने तो डिक्लेयर किया ही नहीं था, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो क्या हो गया? No sir. तो विच मीन्स वो डिक्लेरेशन होने या ना होने से कुछ फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता. Right. फिर भी अगर डाल रखी है तो इसका मतलब आप उस स्पेस को भरने के लिए डाल रहे हो। Yes sir. ये रिक्रूटर को समझ में आता है, इससे मैच्योरिटी समझ में आती है आप कितने सीनियर लेवल पे कितना आपका एक्सपीरियंस है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री बिजनेस, वो समझ में आता है। ठीक है, सो इसलिए मेरे लिए डिक्लेरेशन का कोई यूज नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर आपके पेपर पे ये रिज्यूम में स्पेस नहीं, सब फ्रेशर के काम है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है लिखने के लिए, देन आपको रिज्यूम में कुछ तो बनाना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ तो भरना पड़ेगा उसमें, तो वहां नहीं डाला जाता। बट इफ यू हैव डिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 years और आप डिसेंटली 1.5 पेज के आसपास आ गए, तो ये सब का जरूरत नहीं है डिक्लेरेशन। Got it sir. ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस, एनी डाउट ऑन एनी ऑफ दीस पॉइंट्स? No sir. लास्ट टाइम किसी का कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके रिज्यूमे में है और हमने यहाँ पे वी हैव नॉट डिस्कस, वी हैव नॉट टच अपॉन दैट, प्लीज लास्ट चांस, एक बार अपना रिज्यूमे को स्कैन कर लो। हाँ नारायण। So I have added one more slot, certification. Okay. Is that I have mentioned that I have certificate in this particular course. I have certificate in typing. I have received a certification in NSS. Is that mandatory or shall I remove it? नहीं, यू शुड कीप इट ना। अगर सर्टिफिकेशन आपने किए हैं, वो सर्टिफिकेशन का यूज उसके जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रखने चाहिए। वो मैंने एजुकेशन के अंदर ही कवर कर लिया, एजुकेशन का पार्ट ही है ना सर्टिफिकेशन। Okay, shall I move that slot to education? I have shown it separately. वो एजुकेशन के अंदर ही एक सब हेडिंग बना सकते हो, वहां रख सकते हो। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So objectives is covered. ऑब्जेक्टिव्स में बात करें, रखिए ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर है ना वो। हाँ सर। ठीक है, in case no more questions, so now in terms of the Hello? yeah, Manisha. Sir, there is one question very specific to my case only. Actually, I have a like gap between the working. There was some time that I was not working, like sabbatical, you can say. So, is it required to mention over there to show the continuity? Like I was working in this organization from this time to this time, but after that 3 years I was not working. So, तो मनीषा, आप हाइड कैसे करोगे? जैसे अगर आप लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन ए में काम कर रहे थे फॉर फर्स्ट 3 years एंड देन यू हैव अ गैप ऑफ लेट्स से 2 years, so let's say from 2000 to 2003 you were working in organization A, and then your organization B is from Yes. 2005 to 2008. yes. तो आप जैसे ही लिखोगे Yes, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइनिंग डेट और लास्ट डेट ये थी और द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो बीच में अगर डिफरेंस है तो वो गैप आइडेंटिफाई हो नहीं जाएगा। नहीं, वो तो हो जाएगा, बट आई एम आस्किंग इज डू आई रिक्वायर टू मेंशन इट स्पेसिफिकली दैट 2002 2005 आई वाज ऑन No, sabbatical? no, Is it no, required to no, mention?
No, No. no. Okay. You just mentioned कि what's your joining date and leaving date of both the organization. और अगर HR या आपको रिक्रूटिंग मैनेजर पूछता है कि यहाँ पे इस गैप में कहाँ थे, तो बोलना है उसको. अलग से आपको रेज्यूमे एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है. Okay. And if I'm making this resume after sabbatical, like currently I'm not working, so it will be mentioned in my CV. नहीं, Yeah. उसमें भी कुछ नहीं होगा. उसमें भी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है आई वन सैबैटिकल. आपको सिर्फ ये लिखना है कि मैं जो एक्सपीरियंस है उसकी जॉब में मेरी लास्ट डेट ये थी, खत्म. इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड फॉर समवन. जब वो देखेगा कि इफ योर लास्ट डेट इज नॉट टुडेज Okay. डेट, तो अभी आप वर्क नहीं Yes. कर रही. Okay, fine. So it is not required to be highlighted somewhere that I'm not working right now. प्रेफरेबली नो, ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जाए. Okay. All right. Understood. Thank you. So, in my case, there are two things. One is education एक gap है मेरा. How do I put up that? And secondly, with respect to working, I have a gap because in the middle I was working with my dad. So how do I show this? So in education, when you say gap, that's in post graduation, that's in graduation, school, कहाँ पे है? Sir, 10th के बाद graduation के बीच में थे. तो उसको आप ऐसे अवॉइड कर सकते हो. आप अपने सिर्फ 12th के मार्क्स करो, फिर अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स करो, और अपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो. आप 10th दिखाओ ही मत. सो व्हेन यू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम 12th, प्रॉब्ली वो हाइड हो जाएगा. ओके सर. देखो, हाइड करना और झूठ बोलना दो अलग अलग चीज है. यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप उसको अपने रिज्यूमे को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो. और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. 10th या 11th में अगर गैप था तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको 12th से स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम ए फॉर्मेटिंग परस्पेक्टिव वो नहीं आएगा. बट अगर आपको रिक्रूटर पूछता है स्पेसिफिकली, ठीक है यार, आपको बोला, तो तब आप गलत इन्फॉर्मेशन लिखोगे, वो नॉट एक्सेप्टेबल है. बट इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. ओके सर. और सेकंड क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? हाँ, सो योर व्हेन यू वर वर्किंग विद योर डैड, तो हम उसमें लिख सकते हो फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट यू वर वर्किंग फ्रॉम योर डैड, वर्किंग विद योर डैड. बट इन अ रियल वर्ल्ड, इफ आई लुक एट एनी कैंडिडेट्स रिज्यूमे और उसमें लिखा हुआ है कि मैं इस एक साल में कितने साल कर रहे थे डैड के साथ काम? 1.5 years sir. और क्यों वो डैड के बिजनेस में? And ongoing. यू आर स्टिल विद डैड्स बिजनेस? Yes sir. ओके, सो दो क्वेश्चन. वन, आपने पिछली ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के डैड के बिजनेस में जाने का क्यों डिसाइड किया? ब्रांच बंद हो गया सर. ठीक है. और अभी तुम्हारे को क्यों वापस जाना है सर्विस में या किसी कंपनी में? For the work of it, not for the job of it, for the work of it. नहीं, मुझे समझ नहीं आया. वर्क ऑफ मींस व्हाट? तो आप वर्क कर ही रहे हो ना कहीं पे? हाँ सर. मतलब my interests are in being in research and analytics. I don't know how I can put it up. That is my interest. ठीक है, आप लिख सकते हो. बट आई थिंक दी जो रिज्यूमे में, ठीक है, आपको जो इंटरव्यू में चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि कितना साल हो गया आपको टोटल यहाँ पे डैड के बिजनेस में? After graduation sir. After graduation कैसे पूछ रहे आप? समझा नहीं मैं. अरे, you told me you were working with some organization, then you left that organization and you were working with your dad. So what's your total tenure of your working with your dad? Original organization 1 year. After that 1.5 years sir. With your dad? Yes sir. And then somebody will ask you कि आपको 1.5 साल से कहीं पे भी आपके इंटरेस्ट की जॉब नहीं मिली, देन क्या आंसर दोगे? हाँ वो है, इसलिए पूछ रहा हूँ. वो नहीं मिलेगा, रीजन क्या है?
आप में प्रॉब्लम है, किसी और में प्रॉब्लम है? ये ना सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? ये क्वेश्चन the question is कि how why you not got job in 1.5 years of the area of interest that you're looking for. So you need to be हाँ, prepared because ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जब वो इंटरव्यू सेशंस में आओगे. अगर आपको लगता है आप डिफेंड कर पाओगे तो प्रॉब्लम ठीक है, आप रख लो. अगर आपको लगता है आप डिफेंड नहीं कर पाओगे तो यू शुड ट्राई एंड अवॉइड दिस. ओके सर. रिज्यूमे डालना इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, बट रिज्यूमे डाल के अगर रिक्रूटर ने आपसे क्वेश्चंस पूछे उसको डिफेंड करना, दैट इज द बिग पॉइंट. अंडरस्टूड सर. ठीक है. नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर होना चाहिए? सो डेफिनेटली अगर आप पहले समरी रख रहे हैं तो आपका फर्स्ट वुड सजेस्ट फर्स्ट आप समरी रखो एंड देन यू ब्रिंग ऑब्जेक्टिव. जरूरी नहीं है समरी आपको रखना है, जैसे समरी और ऑब्जेक्टिव कोई जरूरी नहीं है. आप जब अपना रिज्यूमे बनाओगे तब आपको देखना है, एंड देन व्हेन यू विल शो इट टू मी देन आई विल आल्सो गिव द फीडबैक. बट इन केस अगर आप समरी और ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं तो ठीक है. एंड दीज नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगेन ये तो और टॉप पे आ जाएंगे आपके. Okay, so one is this, then you can do summary, and then 3 could be objectives. हाँ, अब एजुकेशन पहले आना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस पहले आना चाहिए. सर मेरे इसमें मैंने वर्क एक्सपीरियंस रखा है पहले. इफ यू आर वर्किंग, इफ करंटली यू आर वर्किंग तो आपको पहले एक्सपीरियंस लिखना चाहिए. अगर आप पहले कुछ काम कर रहे थे, अब छोड़ के पूरा एजुकेशन में अपना कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई पीएचडी कर रहे हो, तो फिर एजुकेशन को पहले लिखना चाहिए. अभी करंट पोजीशन क्या है उसके डिसाइड करना है कि वर्क एक्सपीरियंस आएगा कि एजुकेशन. और अगर आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, एजुकेशन लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट टू पास्ट में जाना है, विच मीन्स फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट द लेटेस्ट जॉब जिसमें आप काम कर रहे हो, फिर पीछे मूव करोगे आप, नॉट द रिवर्स. क्लियर है? तो ये दोनों 3 या 4 हो जाएंगे. तो मैं 3 लिख रहा हूँ दोनों, ठीक है. 3 भी नहीं है, सॉरी 4 है, ये 4 है, ठीक है. सो समरी हो गया. तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है. उसके बाद बाकी चीजें जो बचती हैं आप अपने ऑर्डर में, आप जिस भी प्रेफरेंस में आप लिखना चाहो उसके बाद आप लिख सकते हो. अगर आप हॉबी लिखना चाह रहे हो, स्किल सेट लिखना चाह रहे हो, कुछ लिखना चाह रहे हो, अचीवमेंट है. अचीवमेंट अगर मेरी एजुकेशन अचीवमेंट है तो मैं एजुकेशन के अंदर एक सब हेडिंग बनाऊंगा. अगर मेरी जॉब की कोई अचीवमेंट है, प्रोफेशनल अचीवमेंट है, तो मैं एक्सपीरियंस के अंदर एक सब हेडिंग बनाऊंगा. इस तरीके से आप एक रिज्यूमे को स्ट्रक्चर करें. कोई डाउट है तो पूछिए. सर फर्स्ट पे आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल लिखा है ना? हाँ, बट स्टार्टिंग में से नेम आएगा और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल आएंगे, बस. वो डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, वो सब बाद में आप लिख सकते हो. तो जो मैंने 1 लिखा है, 1 इज ओनली फॉर नेम एंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, और प्रॉब्ली योर लिंक्डइन. दैट्स इट. रेस्ट will come towards the end. सर आपने मिस क्या बोला, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर ईमेल आईडी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड लिंक्डइन. ओके. सर एक जस्ट डाउट है, और जो एड्रेस होता है मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस, वो हम लोग, क्योंकि मेरा जो है मेरा ऊपर ही है, नेम बाद और उसके में बाजू में. ऊपर की क्या जरूरत है? मुझे जाननी क्या करना है, दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो, उसका मैं क्या करूंगा अपनी जॉब के लिए? सो वहां से हटा देना है ना सर?
अभी के लिए तुम रखो जो तुम्हें ठीक लगता है, इसको बाद में बताऊंगा जब रिज्यूमे देखूंगा। चलेगा, ठीक है ठीक है। सेकंड में समरी सर। सेकंड में समरी। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें से व्हाट वी डिस्कस, क्या क्या आना चाहिए, किस ऑर्डर में आना चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट है इनके पीछे? ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू टेक दिस बैक एंड अब आपको अपने जो रिज्यूमे है, ठीक है, उसमें इसको देखना है। एंड देन टुमारो अगर आपके रिज्यूमे जिन लोगों के कल तक अपडेट हो जाएंगे, कल मैं उनके रिज्यूमेस देखूंगा। जिनके नहीं हो पाएंगे, भी कल सबके हो नहीं पाएंगे जितना हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, सो द अदर स्टूडेंट्स कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीकेंड, बट टुमारो से नेक्स्ट क्लास तक सॉरी व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि अब आप ये इन्फॉर्मेशन को अपने रिज्यूमे में अडॉप्ट करना शुरू। एंड ऑल्सो ऐसा कोई मैं आपको रूल नहीं बोल रहा हूँ कि अगर लेट्स से आपके रिज्यूमे में कोई इन्फॉर्मेशन है विच इज नॉट फॉलोइंग इनटू दिस पैरामीटर और ब्रॉड गाइडेंस एंड यू बिलीव इम्पोर्टेंट है, तो उसको हटाना मत, उसको हाईलाइट करके डिस्कस विद मी कि सर ये है, मैंने इसको इसलिए रखा है, ये यहाँ पे नहीं आया किसी फ्रेमवर्क में, किसी पैरामीटर में, अब इसका क्या करना है। हेलो, am I audible? Yes, sir, you're audible. ठीक है, तो क्लियर है कि कल आपको रिज्यूमेस अपने अपडेट करके लेके आना है, जिनके अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, यस Yes, sir. चलिए, ठीक है, सो we'll keep to this point and then we'll connect tomorrow. ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय।
हेलो, नमस्ते, कहाँ पे है? आज तो सैटरडे है बट